Hello students, good morning. I think you all are well at your home. So, in previous lecture, we completed the chapter of the Geography chapter 5 and today we will go in Civics section chapter 4, the unit 3. So, because we have completed the chapter 3 and also hope that you are completing your work properly. If you have any queries, you can also ask me on my WhatsApp or calling contact. The contact number is 8958004411 and the chapter is the unit is belong to the gender. Gender, you know, the where the male and females are the common gender of the human beings, and which one the third gender is known as the transgender, you can say. Okay, so it means in this unit we will discuss about the how we are discriminating among the different genders. Like we are discriminating with our daughters, with females at our home, at our office, and at the working areas. How they are discriminated? They are discriminated from the past times, not to the presently. Presently, still they are discriminating very less. But during the past, they were discriminated a lot. Okay, and they were not similar to the men. This is the thinking of the our traditional thinking, you can say. But and the chapter number 4, growing up as boys and girls. In this chapter, we will discuss about the discrimination only. How can you discriminate the girls in our baby girls in our societies, in our office, as your home? So, being a boy or girl is an important part of one's identity. The society we grow up in teachers us what kind of behavior is acceptable for girls and boys, what boys and girls can or cannot do. We often grow up thinking that the thinking are exactly the same way everywhere, but do all societies look at the boys and girls in the same way? We will try to answer this question in this chapter. We will also look at how the different roles assigned to the boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will learn that most societies value men and women differently. The roles women plays and the worker they do are usually valued less than the roles men play and the worker they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of the work. So, in this chapter, we will discuss about the how they are discriminating and how we are discriminating, differentiate between the girls and boys, and what are the interesting areas of the boys and what are the interesting areas of the girls. And we are also providing them the chances like their interest also. So, that one topic is the growing up in Samoa in the 1920s. So this is the Samoa is the island. So this is the story of a boy. The Samoa Island are part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. This is a very important line for this paragraph. The line is the Samoa. Maybe ask where is the Samoa Island? So this is in the Pacific Ocean. This is in the Pacific Ocean. Okay. So Samoa Island का हमारा Pacific Ocean में है. Next is the in the 1920s, according to the research report
on Samoa society. Children did not go to school. They learned many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing was a very important activity on the islands. This is also important line. What are the occupation of the Samoa Island? So what is their occupation? Their occupation is fishing. Okay, their occupation is fishing. But they learned these things at different points in their childhood. So what they are saying, the students of the Samoa Island, they are not going to the schools. तो सामोआ आइलैंड में क्या है, जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं. वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ें क्या करते हैं, इनफॉर्मली दे लर्न एट देयर होम. अब क्या कर रहा है, द फिशिंग वॉज द प्रोफेशन ऑफ द सामोआ आइलैंड पीपल. जो सामोआ आइलैंड है वहाँ जो लोगों का जो प्रोफेशन हो गया है फिशिंग है. तो फिशिंग भी क्या होता है, ये कहीं सिखाई नहीं जाते उनको. इन प्रैक्टिकल लाइफ द चिल्ड्रन मूव विद देयर parents in the coastal areas and they see how they observe how they are catching the fishes. Then for the next time they are helping to their parents some of the activity like the holding of the net and sometimes they are giving them the water and other activities, some bags. Okay, that's why usually they will informally learn how to catch the fish. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, स्कूल नहीं जाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं, घर पर रहते हैं, वहीं सारी चीज़ें सीखते हैं. और वहाँ का जो प्रोफेशन है फिशिंग है सामोआ आइलैंड का. ओके, एज सुन एज बेबीज कुड वॉक देयर मदर्स और देयर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक आफ्टर देम. Older children, often as younger as 5 years old, took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings. So what is अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे जैसे क्या होते हैं, जो बेबीज होते हैं, जो इंगर होते जाते हैं, जो ओल्डर बनते जाते हैं, एल्डर बनते जाते हैं, उन्हें क्या है, उनके पेरेंट्स उनको देखना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं. जो क्या होंगे, उनसे बड़े वाले होंगे, मे बी ही 5 years old, ही 7 years old, दे आर 10 years old. वो क्या करेंगे, अपने इंगर ब्रदर और सिस्टर को देखेंगे. दे विल ऑब्जर्व, दे विल the both boys and girls look after their younger siblings. Siblings means अपने भाई बहनों को. Okay, siblings means भाई बहनों को. So this line is important for this para. Their siblings हैं. आप कहेंगे कि जो छोटे बच्चे होते थे घरों पर कौन देखता था, their elder brothers and sisters हैं. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or to earn errands for adults till they were teenagers. But once they became teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantations, learned how to weave baskets. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. So what is saying? Here is saying जब जब क्या होता है, जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जब बच्चे क्या होता है, टाइम ऑफ बॉय अबाउट 9 years ओल्ड एक बच्चे की बात की गई है, तो उसने क्या किया है, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग. तो बच्चे ने क्या किया, जो ये 9 years ओल्ड का एक चाइल्ड है, उसने क्या किया, अदर जो चिल्ड्रन हैं उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लिया. फिर उसने क्या सीखा, बाहर जा कर के वो घर से बाहर जाने लग गया है, तो उसने वहाँ क्या सीखा, उसने वहाँ सीखा कि कैसे पेड़ लगाते हैं और कैसे मछलियाँ पकड़ते हैं. गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन. तो लड़कियों ने क्या करना सीख गया, लड़कियों ने फिर भी घर पर ही रहना सीखा. लड़कियों को फिर भी क्या किया जाता था, घर पर ही रखा जाता था. काहे के लिए, टू लुक आफ्टर द, टू टेक केयर द स्मॉलर बेबीज और यंगर बेबीज. ओके, तो घर पर रहकर उन्हें क्या करना है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी है. और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक. अब फिर बड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो खुद ही बाहर चले जाएंगे फिर.
और आफ्टर द 14 ईयर्स, आप 14 ईयर्स के बाद क्या करेंगे, वो भी क्या करना सीख जाते हैं, वो खुद ही आफ्टर द एज ऑफ 14 और 15 ईयर्स दे लर्न हाउ टू यूज द बास्केट। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज। तो क्या करा है, जब क्या हो गया, तो बड़े हो जाते हैं तो क्या बड़े होकर उन्हें क्या क्या सीखना है, उन्हें ये सीखना है कि बास्केट की बुनाई कैसे होती है। एक बास्केट से होते हैं रिंगाल से जो बनती हैं, उनकी बुनाई करना, उन्हें खाना बनाना सिखाना। और जो बॉयज़ हैं उन्हें क्या करना, उन्हें तो और भी फ्रीडम मिल जाती है बॉयज़ को। तो सो नेक्स्ट इज द ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960। नेक्स्ट टॉपिक है। सो द फॉलोइंग is adapted from an account of the experience of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960s. So now we are discussing about the one small town of the Madhya Pradesh during the 1960s. From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools. The girls' school was designed very differently from the boys' school. They had a central courtyard where they played in total circus and तो इट मीन्स जब क्या होती हैं स्टूडेंट व्हेन हु आर स्टडिंग इन 6th और 7th क्लास, इट मीन्स वी आर गोइंग टू सेपरेट स्कूल्स फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ भी क्या है, आपके लिए द बॉयज और द स्कूल इज ओनली फॉर द बॉय नाउ डेज। तो ऐसे क्या होते हैं, सम स्कूल्स आर ओनली फॉर द रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर द ओनली गर्ल्स। सेम वे अब यहाँ पर इसके कहा गया है कि फ्रॉम क्लास 6 से क्या होने लगता है, बॉयज़ और गर्ल्स का क्या होने लगता है, स्कूल अलग अलग होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। और तो इसका मतलब क्या है, दोनों के स्कूल्स का डिज़ाइन में क्या होगा, वो कहता है कि डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड द बॉयज़, जैसे जैसे उनका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पर लिखा है दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल seclusion and safety from the outside world. The boys' school had no such courtyard and our playground was just a big space attached to the school. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of the school girls crowded the narrow streets. As these girls walked on the streets, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used to streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the streets were simply a place to go straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked. So here. So whenever the schools of the girls, they were surrounded by the fence walls from the everywhere. But here is saying the grounds of the boys are not surrounded by the walls. क्या होगा, जो बॉयज़ के जो ग्राउंड होंगे क्या होंगे, पूरे घिरे हुए नहीं होंगे, एक दूसरे अटैच ग्राउंड होंगे। ऐसे में क्या होगा, और गर्ल्स से क्या होंगे, तो क्या होंगे, वो सब क्या होंगे, ये पूरी दीवार लगी रहेगी, पूरे सिक्योर्ड होंगे। फिर क्या करता है, जब हम क्या कर सकते हैं, डेली जो हमारे डे स्कूल्स हैं वहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, जो बॉयज़ हैं तो क्या करते हैं, अपने दे आर गोइंग इन सिंगल और 2 और 4 ऐसे जाते हैं अपने अपने पेयर्स में कुछ। लेकिन जो गर्ल्स होंगे वो क्या करते हैं, पूरे ग्रुप में जाती हैं और क्या करती हैं, जो स्ट्रीट्स क्या होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जो बॉयज खाली ऐसे घूमते रहते हैं, पर्पज जैसे घूमते रहते हैं, बट द गर्ल्स ऑलवेज वॉक टू दीज स्ट्रीट्स विथ पर्पजली वहाँ पर गर्ल्स जाएंगी। स्कूल से जब आती है तो झुंड में आपको क्या मिलेंगी, वो स्कूल से आते हुए झुंड में जाएंगी। और अगर क्या आते हैं फिर शाम को अगर आप कहीं जो घूमते देखेंगे तो क्या करते हैं, वो साइड ट्यूशन को जाएंगी, फिर वहाँ से आएंगी। तो इसका मतलब क्या है, दे आर पर्पजली वॉक्स ओवर द स्ट्रीट्स, बट द बॉयज मोस्टली वॉक्स विदाउट एनी पर्पज इन द स्ट्रीट्स। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज एंड गर्ल्स। और वहाँ पर क्या कहा गया है, गर्ल्स अपने ग्रुप में चलती हैं, इसलिए चलते हैं करा कि दे फियर दैट एनी मेल स्टूडेंट टीच दैम एंड मे बी अटैक ऑन दैम। इससे क्या होता है, गर्ल्स क्या होती हैं, हमेशा
डर के थोड़ा डर के क्या करती हैं, वो अपने एक ग्रुप में जाना पसंद करते हैं. एज यू कैन से दे गेट इट बाय द नेचर टू गो विद द ग्रुप्स ऑफ द 2 और 3 और 4 से. लड़कियां इसमें क्या होती हैं, लगभग कहता है कि ग्रुप में जाती रहती हैं, उनका फिर क्या बन जाता है, नेचर टाइप का बन जाता है कि अकेले नहीं जाना है, किसी के साथ जाना ही जाना है करके. और बच्चे क्या करते हैं और लड़के क्या करते हैं, अपनी एक साइकिल लेकर के ऐसे आपको क्या करेंगे, साइकिल से स्टंट दिखाते हुए अपने आप में क्या करेंगे, वहाँ घूमते फिरते मिल जाएंगे. दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज. ओके, सो आफ्टर द two examples of the above, we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhood were very difficult from others. So what is saying? He is saying if we will discuss about these events with our parents, maybe they face much difficulties than us. ओके, अगर क्या कहता है, हमने अपने पेरेंट्स से पूछना शुरू कर दिया कि आपके समय में कैसा होता था, हमारे समय में ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, सो किया जा रहा है, तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारे समय में तो क्या था, इससे भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमने फेस किया है, डिफिकल्टीज फेस की है, इसलिए ये हो सकता है कह रहे हैं. और नेक्स्ट, वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स. दिस बिगिन फ्रॉम अ वेरी यंगर एज. We are, for example, given different toys to play with. Boys are usually given the cars to play while the girls with dolls. तो क्या कर रहा है, हमने क्या कर दिया है अपनी सोसाइटी के अंदर, फ्रॉम आवर फैमिली, बिगनिंग ऑफ आवर फैमिलीज, वी स्टार्टेड इट इनसाइड आवर फैमिलीज. हमने क्या कर दिया है, अपने घर के अंदर से ही हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया है बॉयज एंड गर्ल्स. जहाँ क्या होते हैं, 2 भाई बहन होते हैं, वहाँ भाई के लिए क्या की जाती है, कार बाई की जाती है एज ए टॉय. और जो गर्ल्स होती है क्या होती है, बहन उसके सिस्टर होती है, उसके क्या होगा, एक डॉल लाई जाएगी. तो ये माना जाएगा कि शी हैज़ टू केयर द डॉल्स इन हर फ्यूचर, शी हैज़ टू केयर द चिल्ड्रन इन हर फ्यूचर. और जो बॉयज है उससे माना जाएगा कि ये तो बाहर घूमते रहेगा, कुछ कमाने वाने की नौकरी करने जहाँ भी जाएगा, गाड़ी से जाना है, इधर जाना है उधर जाना है, गाड़ी चलानी है, तो आउटसाइड एक्टिविटी इंक्लूड मान ली जाती है. इसलिए क्या दिया जाता है, उसे कार दी जाती है. दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली. बोथ टॉयज कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद. Why are girls then given dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that they will have two different futures when they become man and woman. If we think about it, this difference is created in this smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are way of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subjects and we can study or the careers we can choose. So what he is saying? He is saying whenever they are playing with their dolls, they are playing with their toys. They are playing with their toys, they are playing with their dolls. Girls are playing with their dolls, boys are playing with their cars. So what happened? It shows their future. इससे क्या होता है, उनका फ्यूचर शो होता है कि इन्हें फ्यूचर में क्या करना है, आगे बढ़ के उन्हें यही काम करना है. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गया, तो इसके बाद में क्या होता है, इसके अलावा हम क्या सोचते हैं कि which type of the dress should be wear to the girls and which type of the dress should be wear to the boys. तो हम क्या करने लग जाते हैं, और कैसे उनको बात करनी है, उनका बात करने का लहजा क्या होगा, कैसे लड़कियों को कैसे बात करनी चाहिए, लड़कों को कैसे बात करनी चाहिए. इस तरह से क्या करते हैं, वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग दैम. हम उन्हें क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं. वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग दैम. हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. ओके, तो ये क्या है हमारा, ये उनके साथ अलग से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं.
नाउ अब बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो गर्ल्स होते हैं उनका करियर वही मान लिया जाता है, करियर काउंसलिंग होती है तब भी उन्हें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं. So in most of the society including our own, the roles a man and a woman plays or the work they do are not valued equally. Men and women do not have the same status. Let us look hard how this difference exists in the work done by the men and women. So now in our societies, even in nowadays, even in present time, how the roles of the men and women played, how they never treated equally. क्या हो गया, मैन और वुमेन जो काम कर रहे हैं वो कभी भी इक्वली ट्रीटेड नहीं किए जाते हैं, वो डिफरेंटेड ट्रीटेड किए जाते हैं. मैन हैज़ गिवन द प्रायोरिटी सुपीरियरिटी, और आदमी काम अच्छे से कर सकता है, ये महिलाएं नहीं कर सकती हैं. आपको महिलाएं क्या करना है, इन्हें केवल इतना ही देना है, आदमी को इससे ज़्यादा पैसा देना है, इस टाइप से. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस. ओके, दोनों का क्या है, सोसाइटी में क्या कर रखा है, सेम स्टेटस नहीं कर रखा है, कहता है. तो किसने नहीं कर रखा है, इट इज बाय आवर सोसाइटी. हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, हमारे जो सोशल लीडर्स हैं, उनने क्या किया है, उन्हें इक्वल स्टेटस नहीं दिया सोसाइटी में. अब दोनों को क्या माना गया है, अलग अलग मान रखा है. उसके बाद आप क्या करेंगे, जो माई मदर डज नॉट वर्क वाला आप है, ये आप खुद देखेंगे. इट मीन्स माई मदर डज नॉट वर्क आउटसाइड, शी इज वर्किंग इनसाइड. आप इनसाइड को वर्क क्या, उसे काउंट नहीं किया जा रहा है. इनसाइड वर्क इज नॉट काउंटिंग. काम क्या है, बाहर जाके करने वाला काम है, पैसा कमाने वाला काम है, और तो कोई काम ही नहीं अंदर करने का, ये इसमें बताया गया है. तो आप क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसकी कहानी समझेंगे क्या कहा करके. ये देखो इसमें कहा गया है सब, इसमें आदमी की कहानी को जो बातें बताई गई हैं वही सबसे ज़्यादा बताई गई हैं कि आदमी बहुत अच्छा काम करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं. सो वैल्यूइंग हाउस वर्क है नेक्स्ट टॉपिक. ये थे वैल्यूइंग हाउस वर्क. वैल्यूइंग हाउस वर्क में क्या है, हरमीस फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क. दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक to their families across the world. The main responsibility for housework and caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly and the sick members, lies with women. Okay, तो अब क्या कहता है, जो हरमीत की जो फैमिली है, किसकी फैमिली है, हरमीत फैमिली. हरमीत की फैमिली में क्या किया गया है, दैट द वर्क did within the house was real work. हरमीत फैमिली में क्या किया गया है, हरमीत फैमिली did not think that the work जसप्रीत did within the house was real work. अब उन्हें क्या किया है, उन्हें जो अपने घर के अंदर काम किया है, इसका मतलब क्या है, दिस इज द नॉट वर्क. उसे क्या माना गया है, काम नहीं माना गया है. अब काम क्या है, वो कौन सा काम है अंदर जो करने वाला है, ये अंदर करने वाला काम कौन सा हो गया, ये है कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज, व्हिच टाइप ऑफ द केयर गिविंग टास्क, घर की देख रेख करना. लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, वो फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, क्या हैं, और उनके साथ फिर क्या, स्पेशली चिल्ड्रेन, द एल्डरली एंड द सिक मेम्बर्स. तो क्या करना है, केयर गिविंग में क्या करना है, या फैमिली मेम्बर्स की लुकिंग में क्या करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, बूढ़ों की देखभाल करनी है, और जो बीमार है उनका खाने पीने का ध्यान रखना है, बीमार को दवाई देनी है टाइमली. ये क्या है, ये महिलाओं का काम है घर में. This is the work done by the woman at their home. These are the household activities of the woman. अगर हमसे कहा जाता है कि वुमेन के लिए हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं करके, हम ये उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो ये क्या हो गया, वुमेन के लिए कोई काम ये नहीं माना गया है. सो अब क्या होता है, yet as we have seen the work that women do within the home is not recognized at work. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. If therefore does not have to be paid for, and society devalues this work. So what happens? It means जो भी महिलाएं इनसाइड काम कर रहे हैं घर के, ये क्या माना जाता है, दिस इज द नेचुरली वर्क ऑफ द वुमेन. इसका मतलब क्या है कि ये तो सिंपली सा है, इनका ये क्या है, नेचुरल वर्क है, इनको करना ही करना है. तो इसके लिए क्या बोलता है, कोई पेमेंट नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है. दिस इज द
बिकॉज दे आर नॉट डिमांडिंग फॉर द मनी फॉर देयर वर्क। बट क्या होता है, जब हमें वही काम किसी से पैसे में कराना पड़ता है तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इनसाइड वर्क ऑफ द वुमेन। कि जो वुमेन हम घर के अंदर काम करते हैं उसका वैल्यू जब हम क्या करेंगे, पैसा दे के कराएंगे, जब हमें खुद करना पड़ेगा तो क्या होगा, तब हमें पता चलेगा। सो इसलिए क्या किया गया है, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होगा, तो उसके लिए क्या गया है, उनके वर्क का कोई वैल्यू नहीं है कहता है। सो लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, नाउ द टॉपिक इज द लाइफ्स ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स। तो लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स में क्या होगा, सी इन द स्टोरी अब हरमीट्स मदर was not the only one who did not housework. A lot of work was done by Mangla, their domestic helper. Many home particularly in towns and cities, employs domestic workers. They do a lot of work, sweeping and cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children or the elderly. Most domestic workers are women. Sometimes even, तो अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हरमीत की जो फादर है उसके, हरमीत की मदर के काम को उन्होंने क्या माना है, काम जैसा काम नहीं माना है, जबकि क्या कर रहे हैं, घर पर बहुत सारा काम कर रही हैं। उसके बाद लिखा कि अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाई मंगला देयर डोमेस्टिक हेल्पर। अब यहाँ पर क्या आ गई है, एक इनका डोमेस्टिक वर्कर का नाम आ रहा है, उसका नाम क्या है, मंगला। मंगला ये पूछा जा सकता है, हु वाज मंगला करके, तो मंगला क्या करेंगे आप, द डोमेस्टिक वर्कर ऑफ द हरमिट्स हाउस कह सकते हैं आप। अब जो क्या हो गया है, जो एम्प्लॉइज वर्क हैं, जो हमने देखा होगा कि जो सिटीज लाइफ है वहाँ पर क्या होते हैं, वुमेन आर वर्किंग एज ए हाउस होल्ड। वो क्या करते हैं, ये जो दूसरे घरों में जाके क्या करते हैं, वुमेन काम करते हैं, वहाँ जाके क्या काम करना है, दे आर स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और देयर एल्डर्स। तो क्या करता है, ये जो अब महिलाएं घर में अपने घर से अलवा वही काम दूसरे घरों में करते हैं, तो क्या होता है, दिस वाज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो उसको क्या माना गया है, वो काम माना गया है। अगर वही काम हमने पहले घर में किया तो काम नहीं है, हमने अपने घर में झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, कपड़े धोए और उनको प्रेस किया, घर में बच्चे जो थे उनके नहलाया धुलाया, बच्चों की देख रेख की, खाना बनाया, उसके बाद खाने वाले बर्तन धोए, तो ये सब क्या था, ये कोई काम ये अपने घर में किया। अब यही काम हमने क्या किया है, अपने यहाँ 2-3 घंटे में काम निपटा करके फिर हम क्या करते हैं, दूसरे के यहाँ चल दी 12 बजे से 4 बजे तक, 4 घंटे वहाँ काम कर दिया, उसके बदले क्या मिल रहा है, हमें पैसा मिल रहा है। वी आर गेटिंग द मनी इन प्लेस ऑफ द वर्क। काम कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है। तो कहता है कि मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, कहता है वुमेन क्या कर रही हैं, यही डोमेस्टिक वर्क महिलाएं कर रही हैं दूसरे घरों में। समटाइम्स इवन यंग बॉयज एंड गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क, वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। तो क्या कह रहा है, जब हम क्या करते हैं, यही काम घरों में करते हैं, दूसरे घरों में करते हैं, तो उसके लिए बहुत कम वेजेज दिया जाता है। क्यों, क्या उस काम को बहुत बड़ा इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है। सो इसलिए क्या कहा गया है, तो आप ये वाली लाइन भी अंडरलाइन कर लेंगे, वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डू नॉट हैव द मच वैल्यू। अब वहाँ पर वेजेज लो होने का कारण क्या है, कि उनका जो डोमेस्टिक वर्क है उसे कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, इसलिए उसका जो पैसा है कम रखा गया है। वेजेज मीन्स मजदूरी, उनका पैसा, पेमेंट जो भी है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे can begin as early as 5 in the morning and ends as late as 12 at night. Despite the hard work they do, their employees often do not show them much respect. This is what Malini, a domestic worker, had to say about her experience of working in Delhi. तो अब क्या कहा गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो अपने घर में भी क्या करते हैं, मॉर्निंग में 5 o'clock से लेट नाइट तक काम करते रहते हैं, फिर भी क्या कहा गया है, उनके काम को काम नहीं माना गया है। जैसे क्या करते हैं, आदमी क्या करेगा, 8 आवर्स की ड्यूटी के लिए जाएगा, सुबह तैयार होकर आदमी को तैयार करना भी क्या है, महिलाओं का ही काम है। एट मैन विल गो टू द ऑफिस, द वुमेन विल प्रिपेयर फॉर द ब्रेकफास्ट फॉर देम, दे विल सर्व द टी फर्स्टली,
और तो उसके बाद क्या करूँ, उनके लिए जहाँ पानी गर्म करके नहाते वहाँ पानी गर्म करके देंगे, उनके बैग है लंच बैग रख के, और उसके लिए क्या कर देंगी, नाश्ता करा करके लंच बैग रख के उनका बैग तैयार करके, लो ये आपका बैग है, आप ऑफिस जाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना काम हो 8 घंटे में नहीं करेगा उतना काम उन्होंने क्या कर दिया, उसको तैयार करने में लगा दिया है आदमी को, है बाय द वुमन। लेकिन क्या हो गया, वो कोई काम नहीं है। तो अब इतना काम कर दिया उन्होंने, फिर भी उनके काम को कुछ काम नहीं माना गया है। तो एक मालिनी का नाम दिया है मेलानी, डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस of working in Delhi. My first job was with a rich family that lived in a 3-story houses. The Ma'am Sahib was very strange, and she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast, we would get up a cup of tea and 2 dry rotis. We could never get a third roti. In the evening, when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti. I would secretly give it to them and make an extra one for myself. We were so hungry after working through the day. We could not wear chappals in the house in the winter. Our feet would swell up with the cold. I used to feel scared of the Ma'am Sahiba, but also felt angry and humiliated. Did we not work all the day? Did we not deserve to be treated with some respect? So here is the story of a girl who is working as a house worker at a family. तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है, एक इसका नाम दिया गया है, एक क्या है, ये नाम है दिस इज व्हाट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द दिल्ली। एक दिल्ली में काम करने वाली एक क्या है, मेलानी नाम की एक लेडी है, मेड है, वो घर में काम करने वाली नौकरानी है। तो उसने क्या कहा है, उसने अपनी एक कहानी शेयर की है। क्या कहते हो कि हम क्या करते थे, एक रिच फैमिली के साथ मुझे ड्यूटी करनी पड़ी, सबसे पहले नौकरी करने का मौका मिला। तो मेरा काम क्या था, उनके लिए खाना बनाना, नाश्ता बनाना, और वहाँ झाड़ू पोछा मेरे साथ। और क्या थी, मेरा काम केवल किचन में काम करना था, दिन भर खाना बनाना था। बिकॉज द रिच फैमिली डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, दे कीप अ सर्वेंट। ये क्या करते हैं, नौकर रखते हैं खाना बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, उनके ऐसे क्या थे, 2 नौकर और थे। तो उनका काम क्या था, किसी का काम झाड़ू पोछा करना था, किसी का कपड़ा धोना होगा, किसी का काम गार्डनिंग का होगा, वहाँ फूल में पानी देना, फूल में कटिंग करना, और किसी का काम बच्चों को देखना होगा, बच्चे को स्कूल से लाना ले जाना, ये काम करना होगा। तो फिर मुझे क्या करना था, मुझे केवल उनके लिए खाना बनाना था। तो खाना बनाने का मतलब क्या था कि मुझे कभी वो क्या करते, सुबह 5 बजे उठ जाना होता था। तो मुझे कभी 2 से 3 रोटी खाने के लिए नहीं देते थे, ओनली 1 कप ऑफ टी एंड 2 रोटी, इट इज़ और फूड ऑन दैट टाइम। जो अदर गर्ल्स थे उनके पास भी यही था कि उनको भी केवल 2 ही रोटी देनी पड़ती है, जबकि हम दिन भर भूखे रहते थे, भूख लगी रहती थी काम करते करते। लेकिन हमें कभी कभी क्या करना था, चोरी छुपे हम क्या करते थे, 3-3 रोटी खा जाते थे, या हमें चुपचाप से कि उनको रोटी दे देते थे, अपने लिए भी एक रोटी बना लेते थे। लेकिन हमें क्या करना होता था, कितने ठंडे हो घर में, हमें चप्पल नहीं पहनने दिए जाते थे, बिना चप्पल के हमारे पाँव सूज गए थे। दिस द स्टोरी ऑफ ए गर्ल्स। तो क्या वो क्या कर रहे हैं, क्या हमें एक काम, हम भी तो काम कर रहे थे, हमें भी उस लायक से क्या उनसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, करी है हमारे काम के हिसाब से, क्या हम काम नहीं कर रहे हैं वहाँ। अगर हम उनकी मैम साहिबा से कुछ कहेंगे, तो उनकी जो मैडम से कुछ कहेंगे तो हमारे लिए नाराज़ होती थी, गुस्सा दिखाती थी, हमें क्या करती, हमें हरेस करती थी, एक्सप्लॉइट करती थी, स्कोल्ड करती थी, इस टाइप से कुछ बिहेव करती थी, मिसबिहेव करती थी हमारे साथ। ये कहा गया है, ये इसकी एक कहानी है मेलानी की। इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली termed as housework actually involve many different tasks. A number of the tasks required heavy physical work in both rural and urban areas. Women and girls have to fetch water. In rural areas, women and girls carry heavy head loads of firewood. तो इसका मतलब क्या है, तो
तो गांव और शहर में क्या है, काम करने के अलग अलग वो हैं, कह रहा है कि कहीं ज़्यादा काम है, कहीं कम है, हमें हो सकता है काम का डिफ्रेंशिएट हो। फिजिकल वर्क क्या है, तो उन जगह बहुत ज़्यादा करना पड़ता है महिलाओं को, जैसे कहीं दूर से पानी लाना है, या कहीं से इसको गाँव में वो लकड़ी काट के लानी है, इस टाइप से काम करना है। और कपड़े वपड़े धोने हैं, साफ़ सफाई करना है, स्वीपिंग करनी है, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर्ड, वेल्डिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग इधर उधर ले जाना। एंड देन उसके बाद उन्हें फिर खाना बनाना, ये करना, सो करना, सारे काम क्या है। द वर्क वुमेन डू दिस स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग द वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन। आदमी के साथ क्या होते हैं, आदमी ने भी ऐसे काम उनसे अलग ही हैं, कह रहा है कि आदमी के काम अलग है, महिलाओं के काम अलग है। Then another aspect of the housework and caregiving that do not recognize it, that it is very time consuming। चलो अब उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमें थोड़ा एक नीचे एक टेबल दिखाई गई है, एक डाटा दिया गया है। क्या डाटा है, बिलो इज सम डाटा फ्रॉम ए स्पेशल स्टडी डन बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सी इफ यू कैन फिल दिस ब्लैंक। तो क्या कह रहा है, ये महिलाएं और काम करने का तरीका दे रखा है, तमिलनाडु और हरियाणा का दे रखा है। तो काम कितना करते थे वीकली, और इन्हें जो पेड वुमेन कितना काम कर रहे हैं, जो उनको पैसा नहीं देते थे उन्हें कितना काम कर रहे थे, और कितनी महिलाएं हैं, और उसके साथ आदमी पेड कितना काम कर रहा है, अनपेड कितना काम कर रहा है, आप कंपेयर कर सकते हैं। सी टू अभी देखो हियर द वुमेन आर वर्किंग द 23 आवर्स विद द पेमेंट वीकली, और वुमेन आर वर्किंग 30 आवर्स विदाउट एनी पेमेंट। तो टोटल वुमेन का वर्किंग कितना हो गया, 30 और 25 कितना हो गया, 53 आवर्स हो गए, 53 आवर्स हो गए। अब उससे आदमी का कितना काम है, 38 आवर्स ये है वीकली, और यहाँ पर क्या हो गया 2 आवर्स क्या हो गया उसका घर पर काम हो गया वीकली। तो कितने हो गए 40 आवर्स हो गए। यहाँ कितने थे 53 आवर्स थे, 13 आवर्स इनके क्या हो गए ज़्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 2 डेज हो गए, 2 दिन का काम ज़्यादा कर दिया महिलाओं ने। फिर भी क्या है, इन्हें इनका जो डोमेस्टिक वर्क है महिलाओं का जिसके पेमेंट नहीं होते वो क्या है इतना है 30 आवर्स, इनका केवल 2 आवर्स है। ऐसे आप यहाँ देखें तमिलनाडु में होता है ऐसे ही 19 आवर्स क्या है इनके पेमेंट वाले वर्क है। पेमेंट वर्क कौन से के, दूसरे के घरों में जा के खाना बनाना, पोछा लगाना, वहाँ जाके काम करना, उनके कपड़े धोना, बच्चों की देखरेख करना, उनके बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, ये उनके क्या हो गए पेमेंट वाले वर्क हो गए। अब विदाउट पेमेंट 35 आवर्स ये क्या है कि घर में काम करने वाले हैं, अपने घर में खाना बनाना, अपने घर में झाड़ू पोछा करना, अपने घर के बच्चों को स्कूल भेजना तैयार करके, अपने जो हस्बैंड हैं उन्हें तैयार करके ऑफिस भेजना, दीज आर द विदाउट पेमेंट वर्क, विदाउट पेमेंट आवर्स है। 35 आवर्स है यहाँ, 30 आवर्स है यहाँ, 35 आवर्स है। देखो अब ये टोटल यहाँ कितना आवर्स हो गए 35 प्लस 19 कितने हो जाएंगे 54 आवर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 54 आवर्स। अब यहाँ देखें इनके 44 आवर्स हो रहे हैं, फिर भी क्या हो रहे हैं मैन आर बिहाइंड 10 आवर्स है, 10 घंटा फिर भी पीछे हैं। ओके, सो दिस इज द टॉप। सो वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी क्या करेंगे हम इसे हम कल डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस पर आपने जितना हमने पढ़ा लिया है उसको एक बार फिर से आपने वीडियो को बार बार पॉज करके पढ़ना है, सुनना है, और फिर उसके बाद फिर हम आपसे क्या करेंगे कल कुछ हम जो बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, जो आपको दी गई है उनके बारे में कुछ जो ज़रूरी होंगी उनको हम एक बार फिर कल डिस्कस करेंगे आपके साथ हैं, जो चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो आजकल तो लगभग हमारे पास इतना ही है, बहुत है, इसको अभी आप रिवाइज कर लेंगे तो बहुत हद तक हमारा कर जाएगा, हेल्प मिल जाएगी।